Now, today we will discuss NCERT exercise 3.1 of chapter trigonometry. So first question of this exercise is find the radian measures corresponding to the following degree measures. So first question is 25 degree. We have to convert this 25 degree into radians. So first recap last lecture. This is your circle of radius r. This is also radius. Now for example, point A to B. A point moves from A to B, rotate through an angle theta is equal to 1 radian. If arc of this AB, its length is r meter. This arc of length is equal to r meter. This is a circle of radius r, and this arc is of length also r, radius. So if this is arc of length r, then this angle theta is equal to 1 radian. This theta angle is equal to 1 radian. So if length r meter, then angle is kitna student? 1 radian. Complete circle of circumference 2 pi r. If 2 pi r meter, then 1 over r is equal to 2 pi r. This r cancel. This is equal to 2 pi radian. So for complete circle, total angle covered by this particle A to B, this full turn, is equal to how much? 2 pi radian. And one full turn angle in degrees is 360 degree. So 360 degree is equal to 2 pi radian, or pi radian is equal to 360 by 2 is equal to 180 degree. So this is the basic conversion factors. Pi radian is equal to 180 degree. So first 25 डिग्री, 25 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट करना स्टूडेंट? आप रेडियन में. हमें पता चल चुका है 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट? पाई रेडियन. तो 25 डिग्री कितना होगा? पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय 25. ठीक है स्टूडेंट? दिस इज द बेसिक कन्वर्जन between degrees to radians. 180 degree is equal to pi radians, then 25 degree is equal to pi over 180 multiplied by 25. See the solution. 1 degree is equal to pi radians, then 1 degree is equal to, ये आपका 180 कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में. So 1 degree is equal to कितना आ गया? pi over 180 radians. 180 degree is equal to pi radian. Then 1 degree is equal to pi over 180 radian. Then 25 degree is equal to pi over 180 multiplied by 25. This one. So this 25 degree, you have to replace the degree with pi over 180, because 1 degree is equal to pi over 180 radians. So this cancel. 5, 525, 5, 6, 536, 180. So आपका आंसर कितना आ गया? 5 pi over 36 radians. So 25 degree is equal to 5 pi over 36 in radians.
So next is minus 47 degree 30 minute. Second question. So minus 47 degree 30 minute. So first of all हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट 60 मिनट यस 30 मिनट में हमने क्या निकालने हैं स्टूडेंट, डिग्रीज. क्या निकालने हैं, डिग्रीज. सो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री. देन 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 1/2 डिग्री. सो दिस 30 मिनट इज इक्वल टू कितना आया इन डिग्रीज में, 1/2 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट, फिर से देख लो. 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री. देन 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट, 1/2 डिग्री. सो दिस 30 मिनट इज इक्वल टू कितना आया, 1/2 डिग्री. सो 47 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 आपका कितना आ जाएगा, 95/2. सो माइनस 95/2 डिग्रीज. इस डिग्री को क्या करना है स्टूडेंट, रिप्लेस करना है. तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, π/180 रेडियन. सो माइनस 95/2 डिग्री कितना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, π/180 के साथ. सो माइनस 95/2 मल्टीप्लाई बाय π/180, ये आपका रेडियंस में आ गया. इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा 19 π/72 रेडियंस. ठीक है स्टूडेंट. So third one is 240 degree. So this degree is replaced with π/180 radians because 1 degree is equal to π/180 radian. Then 240 degree कितना होगा स्टूडेंट आपका, π/180 मल्टीप्लाई बाय 240. सो 240 मल्टीप्लाई बाय π/180, ये 0 एंड 0 कैंसिल हो गया स्टूडेंट आपका. 6 3 18 6 4 24 कितना आंसर आ गया आपका, 4π/3 रेडियंस. सो 240 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया, 4π/3 रेडियंस. सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 520 डिग्री. सो अगेन 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन. देन 520 डिग्री कितना होगा स्टूडेंट आपका, π/180 मल्टीप्लाई बाय 520. ठीक है स्टूडेंट. सो 520 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. सो दिस डिग्री इज रिप्लेस्ड विद रेडियंस बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर π/180. सो दिस 0 एंड 0 कैंसल, 2 9 18 2 26 52. सो कितना आ गया आपका स्टूडेंट, आपका 26, इसको सॉल्व कर लो, 26 π/9 रेडियंस. सो 520 डिग्री इज इक्वल टू 26/9 रेडियंस. सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स. सो पिछले क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट, आपको डिग्रीज में दे रखे थे एंगल्स और हमने किसमें निकाले थे, रेडियंस में. अब हमें क्या दिया हुआ है, एंगल्स डिग्री में दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 11/16 डिग्री, 11/16 डिग्री. तो क्या आपका कन्वर्जन फैक्टर स्टूडेंट, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री. तो 1 रेडियन कितना होगा स्टूडेंट आपका, 180/पाई डिग्री, 180/पाई डिग्री. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 11/16 रेडियंस. सो इस रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो. मैंने अभी आपको बता दिया है 1 रेडियन कितना स्टूडेंट आपका, 180/पाई डिग्री. सो दिस रेडियन इज रिप्लेस्ड विद डिग्री बाय मल्टीप्लाइंग 180/पाई.
सो ये आपका किस में आ गया, डिग्रीज में, एंगल किस में आ गया, डिग्रीज में। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लो, 11/16 मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर पाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 315/8 डिग्री। रिप्लेस दिस 11/16 180 ओवर पाई, पाई की वैल्यू पुट कर लो 180, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 11/16, ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 180 ओवर 22 एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 315/8 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। सो सेकेंड पार्ट -4 रेडियंस। अब स्टूडेंट इसको हमने आगे उसमें भी कन्वर्ट किया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये आपका कितना आया 315/8 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हम आगे डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है। हमने 315 को किसके साथ डिवाइड करना है, 8 के साथ। किसके साथ डिवाइड करना है, 8 के साथ। और कैसे करना है वो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। सो 315 डिवाइड बाई 8, सो 8 3 24, तो यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट आपका 11 - 4 7, और 5 यहाँ से आ गया, कितना आ गया 75। 9 8 9 72, यहाँ पे 72 आ गया, माइनस कीजिए 75 - 72 कितना आ गया 3 डिग्री। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पे ये 39 कंप्लीट आ गया, 39 डिग्री आपका आ गया। जब हमने 315 को 8 के साथ डिवाइड किया तो ये 39 डिग्री आपका आ गया। रिमाइंडर क्या बचा आपका, ये 3, रिमाइंडर क्या बचा आपका 3। तो इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 60 के साथ, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूँ 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 3 डिग्री कितने होंगे स्टूडेंट आपका, 3 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना आ जाएगा 180 मिनट्स। कितना आ जाएगा 180 मिनट्स। यूजिंग दिस कन्वर्जन फैक्टर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देन 3 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 60 180 मिनट्स। सो 3 को जो आपका रिमाइंडर बचा है यहाँ पे 3 डिग्री को क्या करना है आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ गया 180 मिनट्स। कितना आ गया 180 मिनट्स। सो हमारा क्वेश्चन क्या था 315 डिवाइड बाई 8। सो अब जो रिमाइंडर आपका 180 मिनट्स बचा उसको फिर से किसके साथ डिवाइड करना है, इस 8 के साथ। सो 8 टू 16, ये आपका 2 बच गया और 0 ये यहाँ से आ गया, कितना आ गया 20। अगेन 8 टू 16, यहाँ 16 आ गया और रिमाइंडर कितना बच गया स्टूडेंट आपका, ये 10 - 6 कितना आ गया 4, 20 - 16 कितना आ गया 4। अब ये आपका क्या है 4 मिनट है स्टूडेंट, क्या है 4 मिनट, 20 - 16। अब ये एंगल स्टूडेंट किस में चल रहा है, ये 180 मिनट्स है, क्या 180 मिनट्स है। और ये जो 4 आया, ये जो आपका रिमाइंडर 4 आया, ये किस में था स्टूडेंट आपका मिनट्स में। और ये मैं आपको बता चुका हूँ 1 मिनट इज इक्वल टू कितने होते हैं स्टूडेंट 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 4 मिनट कितने होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 60, हाउ मच सेकेंड्स, 6 4 24, 240 सेकेंड्स। सो अब हमने जो रिमाइंडर हमारा 4 बचा था स्टूडेंट, ये 4 जो 4 मिनट बचा था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया 60 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स में। तो 4 इंटू 60, 4 इंटू 60 कितना आ गया 240, किस में आया स्टूडेंट आपका सेकेंड्स में। और अगेन अब 240 को किसके साथ डिवाइड कर लो 8 के साथ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था 315 डिवाइड बाई 8। ठीक है स्टूडेंट इन डिग्रीज। अब फिर से इसको जो आपका 240 आया 240 सेकेंड्स आया स्टूडेंट, ये 240 क्या है, ये 240 सेकेंड्स है। हमारा 39 डिग्री आ चुका है, 22 मिनट्स आ चुका है। अब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो सेकंड्स में आ रहा है, क्योंकि ये 240 क्या आपके सेकंड्स, 240 को 8 के साथ डिवाइड किया 8 3 24, ये 0 आ गया, तो कितना आ गया, जब 240 को 8 के साथ डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया 30। आंसर किस में आया सेकंड्स में, आंसर किस में आया सेकंड में। सो कंप्लीट आंसर क्या आ गया आपका 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। जो ये आपका 315 डिवाइड बाई 8 डिग्रीज में आया था वो कंप्लीट आंसर क्या आया इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट पार्ट आपका
4 डिग्रीज, सॉरी 4 रेडियंस। सो -4 रेडियंस, ये जो माइनस साइन तो एज इट इज है जैसे रहेगा स्टूडेंट आपका। और ये मैं आपको बता चुका हूँ 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना है 180/पाई डिग्रीज। सो इस रेडियंस को रिप्लेस करके किसमें लिख लो 180 डिग्री ओवर पाई, एंड पाई की वैल्यू पुट कर दो -4 180/पाई, पाई इज 22/7 -4 180, ये 7 आपका ऊपर चला गया 7 डिवाइड बाय 22, और इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट आपका आ जाएगा 2520 डिग्री ओवर 11। अब हमने किसके साथ डिवाइड करना है 2520 को 11 के साथ, कैसे करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। 2520/11, इसको जब हमने सॉल्व किया पाई की वैल्यू पुट करने के बाद 22/7, तो यहाँ आपका आंसर आ गया 2520/11 डिग्री। अब 2520 को सबसे पहले किसके साथ डिवाइड करना हमने 11 के साथ, 11 टू 22, 3 रिमाइंडर बच गया, ये 2 यहाँ से आ गया 32, अगेन 11 टू 22, रिमाइंडर कितना बच गया आपका 10, और ये 0 यहाँ से आ गया 100, 11 9 99, और आपका रिमाइंडर कितना बच गया 1, रिमाइंडर 1 बच गया। अब ये आपका इनकम्प्लीट डिग्रीज में आंसर आ गया। जब हमने 2520 को 11 के साथ डिवाइड किया तो ये 229 डिग्रीज आ गया, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा हुआ है आपका 1। सो इस 1 डिग्री को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है अब 60 के साथ, तो ये आपका क्या आ जाएगा 60 मिनट्स। जो आपका 1 डिग्री है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट आपका 60 मिनट। सो 1 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ गया 60 मिनट्स, क्या आ गया मिनट्स। 229 आपका जो क्वेश्चन था वो डिग्रीज में था स्टूडेंट, अब क्या स्टार्ट हो गया आपका मिनट्स, क्या स्टार्ट हो गया मिनट्स। अगेन इसी 11 के साथ इस 60 को डिवाइड कर दो, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट आपका 60 मिनट। ये 1 डिग्री की जगह क्या आ गया यहाँ पे 60 मिनट। 11 के साथ डिवाइड किया 11 5 55, अब ये आपका 5 डिग्री क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 5 मिनट्स। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 5 मिनट कितने होंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 60, 6 5 30 300 सेकेंड्स। सो ये 5 जो रिमाइंडर बचा आपका इन मिनट्स उसको उसमें कन्वर्ट कर लो सेकंड्स में बाय मल्टीप्लाई विद 60। तो ये क्या आपका आ गया 300, ये 300 किस में आया स्टूडेंट आपका सेकंड्स में, और अब जो क्वेश्चन आएगा वो किस में आएगा सेकंड्स में। अगेन 11 के साथ डिवाइड कर दो, 300 डिवाइड बाई 11, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 22, 8 रिमाइंडर ये 0 आ गया, 11 इंटू 7 77, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब ये आपका कंप्लीट आंसर क्या आ गया 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये आपका लास्ट में रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बचा है जो किस में है स्टूडेंट आपका रिमाइंडर बचा है आपका सेकेंड्स में। तो इसको इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है अप्रॉक्सीमेटली। आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन को पहले डिग्रीज में कन्वर्ट किया, फिर मिनट्स में, फिर सेकंड्स में, आगे कोई कन्वर्जन फैक्टर नहीं है, तो स्टॉप दिस क्वेश्चन हियर। सो आंसर क्या आ गया 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है स्टूडेंट। तो थर्ड पार्ट ऑफ दिस 5 पाई बाय 3 रेडियंस। सो 5 पाई बाय 3 रेडियंस, रेडियंस की जगह क्या पुट कर देना स्टूडेंट आपने 180 डिग्री ओवर पाई, ये पाई और पाई कैंसिल हो गए, 3 6 18, ये आपका 60 आ गया, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 300 डिग्रीज। तो ये आपका यहीं पे सॉल्व हो गया 300 डिग्रीज। नेक्स्ट क्या आ गया 7 पाई बाय 6 रेडियंस, इस रेडियंस की जगह क्या पुट किया स्टूडेंट हमने 180 डिग्री ओवर पाई, ये पाई एंड पाई कैंसल, 6 3 18 0 7 3 21 210 डिग्री, कितना आ गया 7 पाई बाय 6 रेडियंस कितना आ गया 210 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। So third question of this chapter is a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. स्टूडेंट 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशंस वो कवर कर रहा है 1 मिनट में। एक व्हील कितनी रेवोल्यूशंस है आपकी 360 रेवोल्यूशंस, कितनी है 360 रेवोल्यूशंस। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितने डिग्री कितने रेडियंस वो एंगल टर्न करेगा।
सो ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशंस हैं? 360 रेवोल्यूशंस। ये हमें पता है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस। सो अगर हमें ये पता है कि 1 टर्न में एंगल ट्रेस बाय 1 टर्न कितना होता है? 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस। तो 360 रेवोल्यूशंस में कितना होगा वो हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 360। सो लेकिन उसमें किसने पूछा आंसर? रेडियंस में। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन? कितना टाइम है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना व्हील ने एंगल ट्रेस आउट किया है? सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, ये हमें गिवन है 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड ये निकालना है। 1 मिनट का क्या मतलब है स्टूडेंट आपका? 60 सेकेंड्स। सो 60 सेकेंड्स में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है आपकी? 360 रेवोल्यूशंस। तो 1 सेकेंड में कितनी होगी? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशंस होंगी? 360 डिवाइड बाय 60। तो ये कितनी रेवोल्यूशंस आ गई आपकी? 6 revolutions. So if 1 minute means 60 seconds. In 60 seconds, number of revolution is 360. So number of revolutions in 1 second, 360 divided by 60 is equal to कितनी revolutions आ गई 1 सेकेंड में? 6 revolutions. So 1 revolution का मतलब हमको पता है स्टूडेंट, 1 revolutions mean 360 डिग्री is equal to 2 pi radians. तो 6 revolutions का क्या मतलब होगा? क्योंकि जो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ revolutions आई हैं कितनी आई हैं? 6। तो 6 रेवोल्यूशन क्या मतलब है? एक रेवोल्यूशन का मतलब है 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस। तो 6 रेवोल्यूशन का मल्टीप्लाई 6 कर दो। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई कितना आ गया स्टूडेंट आपका? 12 पाई रेडियंस। उसने एंगल रेडियंस पूछा था इसलिए हमने रेडियंस में निकाल दिया। सो 1 रेवोल्यूशन का मतलब है आपका 2 पाई रेडियंस। तो 6 रेवोल्यूशन का क्या मतलब होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई 12 पाई रेडियंस। ठीक है स्टूडेंट आपका। सो नंबर ऑफ आंसर कितना आ गया? 12 पाई रेडियंस। नंबर ऑफ रेडियंस टर्न्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 12 पाई। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना है। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है? 360 रेवोल्यूशंस। तो 1 सेकेंड में, क्वेश्चन में हमें 1 सेकेंड दिया हुआ है, 1 सेकेंड में एंगल ट्रेस आउट करो। तो पहले हमें रेवोल्यूशंस निकालनी है। 360 डिवाइड बाय 60 ये आपका आ गया 6 रेवोल्यूशंस। सो 1 रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? 1 रेवोल्यूशन का मतलब है 2 पाई रेडियंस। सो एंगल कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 6 रेवोल्यूशंस का क्या मतलब होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई कितना एंगल आ गया? 6 इंटू 2 पाई 12 पाई रेडियंस। So how many radians does it turn in 1 second? 12 pi radians. ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आपका आर्टिकल आ गया यूजिंग रेडियंस टू मेजर आर्क लेंथ। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।